This is me, Punesh Kumar Temre, and in today's class of design analysis of algorithms, we have to go for the topic fractional knapsack problem. So, what exactly knapsack problem is? So, first we have to understand the problem definition of knapsack problem. So, you are given the following. The first thing is a knapsack. This is a kind of soldier bag with limited weight capacity. So, here we have one bag. This particular bag having a capacity of 15 kg. So such kind of bag is called as a knapsack. Also, we have given some items and each having its weight and a value. So particularly here I have taken 4 items. So every item having its weight and some value. So here you can look at this particular item is of worth 1000 rupees and total weight is of 10 kg. As far as knapsack problem statement is concerned, here we have to pack the knapsack in such a way that maximum profit should be gained and capacity of knapsack should not be exceeded. Means जैसे अगर knapsack की कैपेसिटी अगर 15 किलो की है तो 15 किलो तक की ही चीजें हमें यहाँ पे पैक करना है, लेकिन जो चीजें हम पैक करेंगे वो पैक चीजें ऐसी होनी चाहिए कि जिसकी वजह से हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके. So this particularly called as a knapsack problem. So here we have to go for the maximization of profit, but on the other hand we have to take care that we should not exceed the capacity of a knapsack. If we are going for the solving of particular knapsack problem, so knapsack problems comes into 2 variants. The first variant is called as 0-1 knapsack problem. This is also called as binary knapsack problem. And another variant which is called as a fractional knapsack problem. So first we have to understand what exactly 0-1 knapsack or a binary knapsack problem is. So here as the name suggests, items are indivisible. Means अगर किसी पर्टिकुलर आइटम को अगर हमें knapsack में इंक्लूड करना है यानी इस तरह का अगर डिसीजन परफॉर्म करना है तो ये तो हम आइटम को लेंगे तो पूरा लेंगे, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे. मीन्स वी कैन नॉट अलाउ द फ्रैक्शन ऑफ पर्टिकुलर आइटम while we are including inside a knapsack. तो knapsack में उस पर्टिकुलर आइटम को अगर हमें पैक करना है तो पैक करते वक्त तो पूरा का पूरा आइटम पैक करेंगे, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे. Fractions are not allowed if we are going for 0-1 knapsack problem. तो हमारे 2 ही डिसीजन रहेंगे, एक तो पूरा आइटम लो, नहीं तो बिल्कुल भी मत लो, और हम उस पर्टिकुलर आइटम का किसी भी तरह का फ्रैक्शन कंसीडर नहीं करेंगे. और जनरली 0-1 knapsack प्रॉब्लम अगर हमें सॉल्व करना है तो 0-1 knapsack प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए जनरली हम डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच यूज करते हैं. Whereas next variant of fractional knapsack problem we have, that is what called as fractional knapsack problem. तो अभी fractional knapsack problem क्या है? तो fractional knapsack problem का मतलब ये है कि जब कभी भी हम knapsack को पैक करते रहेंगे तो knapsack को पैक करते वक्त उस पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम पे मोस्ट वैल्यूएबल आइटम जो होता है उसको हम knapsack में पैक करते हैं. अब knapsack में पैक करते वक्त मोस्ट वैल्यूएबल आइटम अगर पूरी तरह से अगर आ सकता है तो उसको हम इंक्लूड करते थे, और पूरी तरह से अगर नहीं आ रहा है तो फिर उस आइटम को हम छोड़ देते थे. सच काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग वाज देयर इन केस ऑफ 0-1 knapsack प्रॉब्लम. बट फ्रैक्शनल knapsack प्रॉब्लम में ऐसा नहीं है. फ्रैक्शनल knapsack प्रॉब्लम में अगर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम में मोस्ट वैल्यूएबल आइटम को आप पूरी तरह से अगर knapsack में पैक नहीं कर सकते तो फिर उस आइटम को छोड़ते नहीं है या फिर उसको लेआउट नहीं करते. इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट वी आर डूइंग, जितना पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर मोस्ट वैल्यूएबल आइटम हम knapsack में पैक कर सकते हैं उतना ही अमाउंट हम लेते हैं. मान के चलो कि knapsack की रिमेनिंग कैपेसिटी 2 kg की है और मोस्ट वैल्यूएबल आइटम जो है वो टोटल 3 kg का है, तो अभी 3 kg के पूरे आइटम को तुम knapsack में पैक नहीं कर सकते. ओनली अवेलेबल कैपेसिटी 2 kg की है. तो इन द सच काइंड ऑफ सिनेरियो फ्रैक्शनल knapsack प्रॉब्लम अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो जितना भी रिमेनिंग कैपेसिटी ऑफ knapsack होगा उतना ही आइटम हम वहां पे पैक करेंगे. तो दिस इज अबाउट द 2 वेरिएंट्स ऑफ knapsack प्रॉब्लम्स. एंड नाउ वी हैव टू गो फॉर फ्रैक्शनल knapsack प्रॉब्लम. तो जनरली अगर फ्रैक्शनल knapsack प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो फ्रैक्शनल knapsack प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ग्रीडी एल्गोरिथम यूज करते हैं. तो हमारे पास यहाँ पे फ्रैक्शनल knapsack प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ग्रीडी एल्गोरिथम है, और ग्रीडी एल्गोरिथम का फंक्शन
name जो है that is a fractional knapsack, and here we are passing 3 parameters. तो पहला पैरामीटर है array v, सेकंड पैरामीटर इज array w एंड थर्ड पैरामीटर इज integer w. तो वन बाय वन समझ लेते हैं कि ये तीनों पैरामीटर क्या है. array v का मतलब है हमारे पास जितने भी आइटम्स दिए हैं वो आइटम की टोटल कॉस्ट. तो सपोज हमारे पास n आइटम्स दिए हैं तो n आइटम के लिए टोटल कॉस्ट n रहेंगे. तो टोटल कॉस्ट इंडिकेट करने वाला एक वेक्टर रहेगा दैट इज व्हाट कॉल्ड एज array w. तो w इज वंस अगेन array which will indicates the weight कहने से अच्छा हम टोटल वेट कहेंगे. तो array w will indicate the vector representing the total weight of individual item and integer w. तो integer w में आप यहाँ देख सकते हैं कैपिटल w हमने लिखा है. तो what integer capital W indicates? तो integer capital W will indicates the capacity of a knapsack. तो यहाँ पे हमारे पास तीन पैरामीटर है. array v इंडिकेट करेगा टोटल कॉस्ट, w इंडिकेट करेगा उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल आइटम का टोटल वेट, और इंटीजर w इंडिकेट करेगा उस पर्टिकुलर knapsack की टोटल कैपेसिटी. जब ग्रीडी एल्गोरिथम से हम फ्रैक्शनल knapsack प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो टोटल हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं. पहला स्टेप है स्टेप 1, कंप्यूट द पर यूनिट वेट कॉस्ट. जो जितने भी आइटम्स हमारे पास दिए हैं हर आइटम के लिए हम पर यूनिट वेट कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे. देन वी हैव स्टेप 2. तो हियर इन स्टेप 2 वी हैव टू गो फॉर सॉर्टिंग ऑफ आइटम्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर बाय देयर पर यूनिट वेट कॉस्ट. तो जितने भी आइटम्स हमारे पास है हर आइटम के लिए पर यूनिट वेट कॉस्ट हमने स्टेप 1 में कैलकुलेट किया है. And on the basis of that per unit weight cost, in step number 2 we have to sort the items. और items को sort करते वक्त हम descending order में sort करेंगे. तो descending order में sort करते वक्त most valuable item सबसे पहले आएगा और सबसे कम valuable item जो रहेगा वो at the end आएगा. And then finally we have step 3. So what we are doing in step 3? So in step 3 we are going for packing of the knapsack using the greedy strategy so that we can maximize the profit. तो in this way these 3 steps are there, और ये तीनों स्टेप्स के हिसाब से हमारे पास सूडो कोड कुछ इस तरीके का है. तो स्टेप 1 के लिए सूडो कोड जो है वो है फॉर i is equals to 1 to size of v do pi is equals to vi by wi. मींस हम क्या कर रहे हैं आइटम नंबर 1 से लेके लास्ट वाला आइटम तक दैट इज द साइज ऑफ v. व्हाट वी हैव टू डू pi पर यूनिट वेट कॉस्ट हर एक आइटम के लिए कैलकुलेट करना है. इट विल बी कंप्यूटेड बाय vi अपॉन wi and a total cost divided by the wi. So this is about our step number 1, that is the compute per unit weight cost. Then we have step 2, sort the items. अब आइटम सॉर्ट करने के लिए हमारे पास फंक्शन है सॉर्ट डिसेंडिंग p. अब जितना भी पर यूनिट वेट कॉस्ट हमने कैलकुलेट किया ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव टू गो फॉर द सॉर्टिंग ऑफ आइटम्स. तो आइटम सॉर्ट करने वाला स्टेप जो है दैट इज स्टेप नंबर 2. Then we have step 3. So in step number 3 what we have to do, we have to pack the knapsack by using the greedy strategy so that we can maximize the profit. तो profit maximize कराने के लिए हमारा सूडो कोड है i is equals to 1 while w greater than 0 do amount will be equals to the minimum of w comma wi. तो सबसे पहले हम अमाउंट कैलकुलेट करते हैं. तो अमाउंट क्या इंडिकेट करेगा, अमाउंट इंडिकेट करेगा कि उस पर्टिकुलर इटरेशन के लिए कितना अमाउंट है जो हम knapsack में पैक करने वाले हैं. And as far as that particular iteration is concerned, that will be the solution. And then we have to compute the w. So w will indicate the remaining amount of capacity inside our knapsack, and then we have to go for the next valuable item. This is all about the step number 3, that is about the pack the knapsack by using the greedy strategy so that we can maximize the profit. So now we have to go for one problem. So here we have problem now. Consider 5 items along with their respective weight and values as follows. So here we have given some items, their weights and values, and these are as follows. So here you can see we have given in all 5 items, item 1, 2, 3, 4, 5. Every item having total weight of 5. As far as item 1 is concerned, total weight is 5 and total cost is of 30. यानी मान के चलो कि आइटम 1 का वेट जो है वो 5 kg है जबकि उसका टोटल कॉस्ट जो होगा वो 30 रुपीज होगा. तो लाइकवाइज तो हियर वी हैवंट मेंशन्ड द यूनिट, बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम समझ रहे हैं कि वेट के लिए यूनिट जो है हमारा वो है किलोग्राम, व्हेयरएज वैल्यू के लिए जो यूनिट है दैट इज व्हाट रुपीज. तो आइटम 1 इज
of 5 kg of worth 30 rupees. And one more thing is given to us, that is what the capacity of a knapsack. And capacity of knapsack is given as capital W is equals to 60. And what we have to do, we have to find the solution for fractional knapsack problem by using greedy strategy. So here we have solution, step 1. So step 1 is about compute per unit weight cost for all items. तो जितने भी आइटम दिए हर आइटम के लिए पर यूनिट वेट कॉस्ट कैलकुलेट करना है, तो उसका सूडो कोड है फॉर i इज इक्वल्स टू 1 टू साइज ऑफ v, यानी जितने भी आइटम है व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कंप्यूट pi एंड pi विल बी कंप्यूटेड अपॉन vi अपॉन wi, यानी टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट फॉर एवरी आइटम. तो हर आइटम के लिए vi बाय wi ये कैलकुलेशंस परफॉर्म करना है. तो आफ्टर परफॉर्मिंग द कंप्यूटेशन इट विल लुक लाइक दिस. तो आप यहाँ देख सकते हैं आइटम 1 के लिए टोटल वेट जो है दैट इज 5 kg और टोटल कॉस्ट जो है दैट इज 30. तो vi विल बी द 30 एंड wi विल बी 5 एंड दैट्स व्हाट pi यानी p1. आइटम 1 के लिए अगर हम p1 कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी 30 by 5, तो इट कम्स आउट 6. तो सिमिलरली फॉर रिमेनिंग आइटम्स के लिए हमें परफॉर्म करना है, इट विल बी 20 by 10 दैट इज 2, 100 by 20 दैट इज 5, 90 by 30 दैट विल बी 3 and 160 by 40 that will be 4. तो पर यूनिट वेट कॉस्ट का मतलब क्या है? तो पर यूनिट वेट कॉस्ट का मतलब है कि पर केजी हाउ मच कॉस्ट वी हैव टू पे. तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि आइटम 1 जो है ये पूरा 5 किलो का था और कॉस्ट 30 रुपीज थी, तो फिर 1 किलो कितने का होगा? तो 1 kg विल बी ऑफ 6 रुपीज. तो 6 रुपीज पर केजी. इस तरीके से हमें आइटम 1 का कॉस्ट पता चल गया. तो आइटम 2 के लिए 2 रुपीज पर केजी. लाइकवाइज वी हैव कंप्यूटेड द पर यूनिट कॉस्ट फॉर ऑल 5 आइटम्स. एंड नाउ वी हैव टू गो टू स्टेप 2. So step 2 is about sort the items in descending order by per unit weight cost. Pseudo code है sort descending p. तो previously in step number 1 हमने हर आइटम के लिए पर यूनिट वेट कॉस्ट कैलकुलेट किया था. तो आप देख सकते हैं आइटम 1 के लिए पर यूनिट वेट कॉस्ट था 6, आइटम 2 के लिए पर यूनिट वेट कॉस्ट था 2, आइटम 3 के लिए पर यूनिट वेट कॉस्ट था 5, आइटम 4 के लिए पर यूनिट वेट कॉस्ट इज 3 एंड आइटम 5 के लिए पर यूनिट वेट कॉस्ट इज 4. तो पर यूनिट वेट कॉस्ट कैलकुलेट करने का बेसिक रीजन ये था कि मोस्ट प्रॉफिटेबल आइटम कौन सा है हमें पता चल सके. तो बाय यूजिंग पर यूनिट वेट कॉस्ट मोस्ट प्रॉफिटेबल आइटम कौन सा है हमें पता चल रहा है. एंड नाउ इन स्टेप नंबर 2 व्हाट वी हैव टू डू, जितने भी आइटम्स हमारे पास है ये सारे के सारे आइटम्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है बाय यूजिंग पर यूनिट वेट कॉस्ट. तो जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे तो वो वाला आइटम सबसे पहले आएगा जिसका पर यूनिट वेट कॉस्ट सबसे ज्यादा रहेगा. तो पर यूनिट वेट कॉस्ट जिसका ज्यादा है दैट आइटम विल बी द मोस्ट प्रॉफिटेबल आइटम 1. और अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि अमंग आइटम 1 टू आइटम 5 आइटम 1 ऐसा आइटम है जिसका पर यूनिट वेट कॉस्ट सबसे ज्यादा है. तो जब कभी भी हम सॉर्टिंग अप्लाई करेंगे तो एट दैट टाइम आइटम 1 सबसे पहले आएगा. देन नेक्स्ट आइटम कम्स आउट विल बी आइटम 3. क्यों? क्योंकि आइटम 3 का पर यूनिट वेट कॉस्ट जो है दैट विल बी द 5. उसके बाद नेक्स्ट आइटम जो आएगा दैट विल बी आइटम 5 पर यूनिट वेट कॉस्ट 4. आफ्टर दैट आइटम 4 एंड फाइनली एट द एंड देयर विल बी द आइटम 2. तो जब हम सॉर्टिंग अप्लाई करते हैं तो सॉर्टिंग अप्लाई करने के बाद सॉर्टेड ऑर्डर कुछ इस तरीके का रहेगा. तो आप यहाँ देख सकते हैं आइटम 1 सबसे पहला है क्योंकि उसका पर यूनिट वेट कॉस्ट सबसे ज्यादा है, जबकि आइटम 2 सबसे एंड में है क्योंकि उसका पर यूनिट वेट कॉस्ट सबसे कम है. So this was about step number 2, and now we have to go to step 3. Step 3 is about packing of knapsack using greedy strategies so that we have to maximize the profit. तो इसका pseudo code कुछ इस तरीके से है. I equals to 1 while w greater than 0 do amount will be equals to minimum of w comma wi. Solution of I will be equals to amount, w will be equals to w minus amount, I will be equals to I plus 1 return solution. So what we have to do as far as this pseudo code is concerned. तो पर्टिकुलरली हम क्या कर रहे हैं इस पूरे pseudo code में while w greater than 0 यानी knapsack की रिमेनिंग कैपेसिटी जब तक के ग्रेटर देन 0 है यानी पॉजिटिव वैल्यू तब तक के हमें इटरेशंस परफॉर्म करते जाएंगे और हर इटरेशन में हमें अमाउंट, सॉल्यूशन और w कैलकुलेट करना है. अब अमाउंट का मतलब क्या है? अमाउंट का मतलब है कितना अमाउंट हम knapsack में उस पर्टिकुलर इटरेशन में पैक कर सकते हैं. तो हाउ मच अमाउंट ऑफ वी कैन पैक, दिस विल बी कंप्यूटेड बाय मिनिमम ऑफ w कॉमा wi. अब w क्या है? रिमेनिंग कैपेसिटी ऑफ knapsack और wi उस पर्टिकुलर उस वक्त जिस आइटम को कंसीडर करें उसका टोटल कॉस्ट. दोनों में से जो भी मिनिमम रहेगा दैट मच अमाउंट ऑफ आइटम वी हैव टू पैक
That's why amount will be calculated, and this amount will become solution for that particular iteration. And after that, we have to update the remaining capacity of a knapsack, and remaining capacity of knapsack will be computed by W will be equals to W minus of amount. तो W will be equals to W minus amount. तो W क्या रहेगा आपका? तो W रहेगा आपका इसके पहले की इटरेशन में जो W का वैल्यू था, और जितना अमाउंट आपने पैक किया, दैट मच अमाउंट यू हैव टू सब्सट्रैक्ट, एंड यू विल गेट द updated remaining capacity of knapsack, and then you have to go for consideration of next item. So in this way you have to apply this particular step. तो one by one iteration wise हम study करेंगे. So here we have to go for initialization. So initially we have W, that is the capacity of knapsack will be equals to 60. तो ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी हमारे कैप्सैक की रिमेनिंग कैपेसिटी कितनी है. जब हमारे कैप्सैक में हमने किसी को पैक ही नहीं किया है, तो एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ knapsack जो रहेगा, दैट विल बी द रिमेनिंग कैपेसिटी ऑफ knapsack, एंड दैट्स व्हाई here remaining capacity of knapsack capital W will be equals to 60. And now we have to go for while W greater than 0. तो क्या W greater than 0 है क्या? Yes, W is greater than 0. Why? Because W is 60, and that's why we have to enter into the iterations. अब iterations के लिए जाएंगे तो सबसे पहला we have iteration 1. तो इटरेशन 1 के लिए जब जाएंगे, तो इटरेशन 1 के लिए जाते वक्त I will be equals to 1, एंड दैट्स व्हाई आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले हमारा I जो रहेगा, दिस विल पॉइंट टू आइटम 1. I का मतलब है आइटम वाइज जाएंगे, यानी फर्स्ट पोजीशन पे का आइटम, फिर नेक्स्ट पोजीशन पे का आइटम, फिर नेक्स्ट पोजीशन पे का आइटम, इस तरीके से. तो हियर I will be equals to 1. तो I equals to 1, एंड फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा आइटम है? तो फर्स्ट पोजीशन का आइटम जो है वो हमारा आइटम 5, एंड दैट्स व्हाई हियर वी हैव टू कंप्यूट फर्स्ट अमाउंट. तो अमाउंट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट विल बी इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ W कॉमा WI. तो करंटली I कहां पॉइंट कर रहा है? फर्स्ट आइटम पे. तो फर्स्ट आइटम का WI क्या होगा? तो फर्स्ट आइटम का WI होगा 5, एंड दैट्स व्हाई अगर अमाउंट हम कैलकुलेट करते हैं तो इट विल बी मिनिमम ऑफ W कॉमा WI. तो W कितना है हमारा? 60, और WI कितना है? फर्स्ट वाले आइटम का टोटल वेट. टोटल वेट कितना है उसका? 5. तो मिनिमम ऑफ 60 को 5 कितना रहेगा? 5. तो यहाँ इंडिकेट कर रहा है कि 5 इज द कैपेसिटी, 5 इज द अमाउंट विच वी हैव टू पैक इनटू द knapsack. तो अभी इस इटरेशन में हमें 5 किलो की चीजें हमारे knapsack में पैक करना है, एंड दैट्स व्हाई सॉल्यूशन में हम आइटम 1 जो है, आइटम 1 का 5 किलो पैक करेंगे. तो सॉल्यूशन ऑफ I विल बिकम 5, and then we have to compute W and a remaining capacity of knapsack. तो remaining capacity of knapsack क्या रहेगी? इससे पहले जो कैपेसिटी थी माइनस जितना अमाउंट आपने पैक किया. तो इनिशियली इट वाज 60, तो 60 minus 5 दैट विल बी इक्वल्स टू 55, एंड दैट्स व्हाई अभी हमने जो इटरेशन 1 में जो अपडेशंस परफॉर्म किया, ऑन द बेसिस ऑफ दैट अपडेशन अमाउंट की वैल्यू है 5, सॉल्यूशन I की वैल्यू बन गई 5, और W अपडेट हो गया 55. And that's why if we are going for iteration 1, तो iteration 1 में हम ये सारे अपडेशंस परफॉर्म करेंगे, and finally we have to update the value of I. तो I will be updated by I plus 1, that is 2. तो अब फिर जाएंगे हम सेकंड इटरेशन पे. तो सेकंड इटरेशन में जाने से पहले हमारा टेबल कुछ इस तरीके से बनेगा. तो आप देख सकते हैं हमने कंसीडर किया आइटम 1, और आइटम 1 कंसीडर करते वक्त उसका WI बनेगा 5, और अगर हम W कैलकुलेट करते हैं, अमाउंट अगर कैलकुलेट करते हैं, तो अमाउंट विल बी इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ 5, 60 दैट विल बी 5, एंड W अगर कैलकुलेट करेंगे तो W विल बिकम W माइनस ऑफ अमाउंट दैट विल बी इक्वल्स टू 55, एंड फाइनली सॉल्यूशन जो बनेगा दैट इज 5 फॉर आइटम 1. तो दिस वाज अबाउट द इटरेशन 1, एंड नाउ वी हैव टू गो टू इटरेशन 2. तो अभी जाएंगे हम इटरेशन 2 के लिए. तो इटरेशन 2 में अगर आप देखोगे तो हमारा I जो रहेगा वो 2 को पॉइंट करेगा, एंड दैट्स व्हाई हियर वी हैव I इक्वल्स टू 2. जो रेड बबल है, ये रेड बबल इंडिकेट कर रहा है I. तो करंटली हम सेकंड एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं हमारे सॉर्टेड लिस्ट में. तो सॉर्टेड लिस्ट में का सेकंड पोजीशन पे का एलिमेंट कौन सा है? दैट इज आइटम 3, एंड दैट्स व्हाई अभी अगर इस पर्टिकुलर इटरेशन के लिए अगर हम जाएंगे तो हमारा WI जो बनेगा दैट विल बी इक्वल्स टू 20, एंड देयरफॉर हियर वी हैव first we have to go for computation of amount. The amount will be equals to minimum of W comma WI, that is minimum of 55 comma
20। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉइंट कर रहा, पॉइंट करने वाला वेट कितना है 20, देयरफॉर हियर वी हैव 20, तो अमाउंट विल बी इक्वल टू 20। अमाउंट इक्वल टू 20 का मतलब है कि इस पर्टिकुलर इटरेशन में हम 20 किलो की चीजें हमारे knapsack में पैक करने वाले हैं, और ये 20 किलो किससे रिलेटेड रहेगा, तो दिस 20 kg विल बी ऑफ आइटम नंबर 3, गेटिंग इट, एंड देयरफॉर हियर वी हैव सॉल्यूशन, solution will be 20 kg of item number 3, and then we have to compute remaining capacity of knapsack, that will be W minus of amount। तो W minus of amount कितना होगा 55 minus of 20, क्यों? क्योंकि इनिशियली W जो था, W का वैल्यू हमारा था 55, इससे प्रीवियस इटरेशन में हमने अपडेट किया था, तो 55 minus 20 that will be equal to 35। तो एट द एंड ऑफ दिस इटरेशन रिमेनिंग कैपेसिटी ऑफ knapsack जो रहेगा वो 35 रहेगा, और फिर हमें आई को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, तो आई विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1, दैट विल बी 3, यानी ये वाला पॉइंट जो रहेगा वो यहाँ पॉइंट करेगा। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इटरेशन 2 हमारे वैल्यूज कुछ इस तरह से हो जाएंगे। तो इन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इटरेशन 2 हमारा WI जो था वो 20 है, W यानी रिमेनिंग कैपेसिटी ऑफ knapsack बन गया 35, आप यहाँ देख सकते हैं, और अमाउंट जो था वो है 20, एंड सॉल्यूशन में हमने आइटम 3 का 20 kg पैक किया, गेटिंग इट। आफ्टर दैट नाउ वी हैव टू गो टू इटरेशन 3। तो हियर वी हैव इटरेशन 3, तो इटरेशन 3 में फिर से चेक करना पड़ेगा W ग्रेटर देन 0 है क्या, तो W की वैल्यू कितनी थी 35, तो डेफिनेटली वी हैव टू गो इनटू द इटरेशन, एंड दैट्स व्हाई नाउ वी हैव टू गो फॉर I इज इक्वल टू 3। I इज इक्वल टू 3 का मतलब हमें थर्ड एलिमेंट को पॉइंट करना, और थर्ड एलिमेंट कौन सा है हमारा सॉर्टेड लिस्ट में आइटम नंबर 5, तो हमें आइटम नंबर 5 को पैक करना, आइटम नंबर 5 को पॉइंट करना, और जब हम आइटम नंबर 5 को पॉइंट करेंगे तो WI कितना बन जाएगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन में 40, and that's why first we have to go for computation of amount। तो amount will be equals to minimum of W comma WI, तो W कितना है 35 और WI कितना है 40, तो that's why minimum of 35 comma 40, minimum कौन सा है 35, therefore 35 amount of item will be packed। अब आप यहाँ पे ध्यान दो, अभी इस पर्टिकुलर इटरेशन में हमारा मोस्ट वैल्यूएबल आइटम जो है वो है आइटम 5, तो क्या हम आइटम 5 को पूरी तरह से पैक कर सकते हैं क्या, तो आइटम 5 पूरी तरह से यहाँ पे पैक नहीं होगा। इससे प्रीवियस वाले जो दो इटरेशन थे, इटरेशन 1 एंड इटरेशन 2, तो दोनों इटरेशन में करंट कैपेसिटी ऑफ knapsack एंड करंट आइटम, ये दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो रिमेनिंग कैपेसिटी ऑफ knapsack जो थी वो ज्यादा थी, एंड दैट्स व्हाई हमने आइटम 1 को पूरी तरह से पैक किया था, या आइटम 3 को पूरी तरह से पैक किया था, तो दैट्स व्हाई अभी तक के हमारे पास डिसीजन मेकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आया था कि उस पर्टिकुलर आइटम को लेंगे या नहीं लेंगे। बट अगर हम इटरेशन नंबर 3 की बात करेंगे तो इटरेशन नंबर 3 में क्या हो रहा है कि इटरेशन नंबर 3 में मोस्ट वैल्यूएबल आइटम हमारा आइटम 5 है, और इस आइटम को पैक करने के लिए लगने वाली कैपेसिटी जो है वो है 40 kg, जबकि अवेलेबल कैपेसिटी जो है वो 35, यानी अभी ऐसी सिचुएशन आ गई कि आइटम का वेट ज्यादा है और रिमेनिंग कैपेसिटी कम है। तो जब ऐसा रहेगा तो उस वक्त हम प्रॉब्लम कौन सा सॉल्व कर रहे हैं वो देखना है। अभी हम फ्रैक्शनल knapsack प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, और फ्रैक्शनल knapsack प्रॉब्लम सॉल्व करने की वजह से मोस्ट वैल्यूएबल आइटम का उतना ही फ्रैक्शन हम ले सकते हैं जितने की हमारे knapsack की रिमेनिंग कैपेसिटी है। शायद से ये वाला प्रॉब्लम अगर बाइनरी knapsack प्रॉब्लम अगर होता तो फिर इस पर्टिकुलर आइटम को हम पूरी तरह से पैक नहीं कर सकते, तो इस आइटम को हमें छोड़ना पड़ता, एंड वी हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट मोस्ट वैल्यूएबल आइटम। So this is the difference in between binary knapsack problem and our fractional knapsack problem। तो यहाँ पे हम fractional knapsack problem होने की वजह से उतना ही पोर्शन हम ले सकते हैं जितने की रिमेनिंग कैपेसिटी ऑफ हमारा knapsack है, एंड दैट्स व्हाई अवेलेबल रिक्वायर्ड कैपेसिटी जो है वो 40 और अवेलेबल कैपेसिटी जो है दैट इज 35, तो हम 35 इतना ही फ्रैक्शन लेंगे। तो अभी आइटम 3 का ओनली 35 kg ही हम कंसिडर करेंगे, तो आइटम 5 का 35 kg वी हैव टू पैक, एंड दैट्स व्हाई इन दिस पर्टिकुलर इटरेशन सॉल्यूशन विल बिकम 35 of item number 5, and then we have to compute the W। So now W will be equals to W minus amount, 35 minus 35 that will be equals to 0। It indicates that अभी हमारा knapsack पूरी तरह से पैक हो चुका है, तो W की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ये कंडीशन अगर चेक करेंगे नेक्स्ट इटरेशन में तो हमेशा फॉल्स होने वाली है, इसलिए हमारा प्रॉब्लम इसी पर्टिकुलर इटरेशन में स्टॉप हो जाएगा। वी हैव टू इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ I by 1, नाउ इट विल बिकम 4, और हमारा टेबल अगर हम देखते हैं तो हमारा टेबल कुछ इस तरीके से बनेगा। तो एज फार एज इटरेशन 3 इज कंसर्न, इटरेशन 3 में WI 40 था,
knapsack की रिमेनिंग कैपेसिटी 35 थी, तो 35 और 40 में से कम कौन था? 35, इसलिए 35 विल बी द अमाउंट, एंड आफ्टर दैट 35 माइनस 35 दैट विल बिकम 0, तो 0 विल बी द रिमेनिंग कैपेसिटी ऑफ knapsack, और सॉल्यूशन जो हो गया वो हमारा 35। इसके बाद वाले इटरेशन अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसके बाद वाले इटरेशन में w ग्रेटर देन 0, ये वाला कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाएगा, एंड दैट्स व्हाई ये कंडीशन फॉल्स होने की वजह से इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इटरेशन 4 के लिए अगर हम जाते भी है तो w ग्रेटर देन 0 विल बिकम फॉल्स, तो हम आगे नहीं जा पाएंगे, एंड दैट्स व्हाई हमारा knapsack जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो विल गेट द मैसेज वी हैव एक्सीडेड द कैपेसिटी ऑफ knapsack, एंड दैट्स व्हाई सॉल्यूशन अगर देखेंगे तो हमारा सॉल्यूशन कुछ इस तरह से रहेगा। तो इन इटरेशन 1 5 kg ऑफ आइटम 1 वी हैव पैक्ड, in iteration 2 20 kg of item 3 we have packed, and in iteration 3 35 kg of item 5 we have packed, and now ओवरऑल अगर हम देखेंगे स्टेप वाइज की स्टेप इटरेशन 1 में हमने क्या पैक किया, इटरेशन 2 में क्या पैक किया, तो इनिशियली हमारा knapsack कुछ इस तरीके से था, और इस knapsack की टोटल कैपेसिटी जो थी वो थी 60। आफ्टर दैट इन फर्स्ट इटरेशन हमने 5 kg आइटम पैक किया आइटम 1 का, तो 60 में से 5 kg माइनस हो जाएगा, दैट इज 55 विल बी द रिमेनिंग कैपेसिटी ऑफ knapsack। देन स्टेप नंबर 2 में 20 kg ऑफ आइटम 3 हमने पैक किया, तो अभी हमारे सॉल्यूशन में क्या है 5 kg ऑफ आइटम 1 एंड 20 kg ऑफ आइटम 3, तो टोटल 25 kg हो जाएगा, रिमेनिंग कैपेसिटी रहेगा 35, एंड इन इटरेशन 3 अभी 35 जो रिमेनिंग कैपेसिटी था वहां पे मोस्ट वैल्यूएबल आइटम जो था 5, मोस्ट वैल्यूएबल आइटम को 35 kg हमने यहाँ पे पैक किया। तो एक्चुअली हर इटरेशन में हमने क्या किया, हर इटरेशन में हमने चेक किया कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम पे मोस्ट वैल्यूएबल आइटम कौन सा है वो चेक किया। तो आप देख सकते हैं इटरेशन 1 में मोस्ट वैल्यूएबल आइटम कौन सा था 5, क्या उस आइटम को हम पूरी तरह से knapsack में पैक कर सकते हैं क्या? आंसर था यस। क्यों? क्योंकि इसको लग रहा था 5 और हमारे पास था 60, तो हमने पूरा पैक कर दिया। उसके बाद इटरेशन 2 में गए, उस वक्त का मोस्ट वैल्यूएबल आइटम कौन सा था वो हमने चेक किया था, दैट वाज आइटम नंबर 3, उसका टोटल वेट था 20, तो क्या इस पर्टिकुलर आइटम को पूरी तरह से पैक कर सकते हैं क्या? तो आंसर था यस। क्यों? क्योंकि रिमेनिंग कैपेसिटी थी 55, इसलिए हमने आइटम 3 को पूरा पैक कर दिया। अब इटरेशन 3 में गए, इटरेशन 3 में मोस्ट वैल्यूएबल आइटम कौन था वो चेक किया, दैट वाज आइटम 5, और आइटम 5 का टोटल वेट था 40, तो क्या टोटल आइटम 5 को हम पैक कर सकते हैं क्या? तो आंसर था नो। फिर हमने चेक किया हमारे प्रॉब्लम का नेचर कौन सा है, प्रॉब्लम का नेचर फ्रैक्शनल knapsack प्रॉब्लम है, तो ऐसी सिचुएशन में हमने उतना ही पोर्शन या उतना ही फ्रैक्शन आप उस पर्टिकुलर आइटम का पैक किया जितना कि हमारे knapsack की रिमेनिंग कैपेसिटी थी। तो हमारी knapsack की रिमेनिंग कैपेसिटी 35 थी, इसलिए हमने आउट ऑफ 40 ओनली 35 kg ऑफ आइटम 5 पैक किया, एंड फाइनल सॉल्यूशन जो था वो बन गया हमारा 5 kg of item 1, 20 kg of item 3 and 35 kg of item 4। और अगर हम फाइनली प्रॉफिट अगर कैलकुलेट करते तो वी विल गेट द प्रॉफिट एज प्रॉफिट इक्वल्स टू 5 into 6, why 6? Because 6 is the per unit weight cost of item 1, then 20 into 5, that is 20 into per unit weight cost of item 3, and then 35 into 4, 4 is the per unit weight cost of item 5, और ये इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो वी आर गेटिंग द टोटल प्रॉफिट एज 270। So in this way, we have packed the knapsack by using greedy strategy, and we got the profit of 270 rupees. Now we have to go for the complexity analysis of our fractional knapsack problem. So as far as fractional knapsack problem, the main time taking step is the sorting of all items in decreasing order of their per unit weight cost, which we have performed in step number 2. और जितने भी आइटम्स हमारे पास है ये सारे आइटम्स को अगर उनके पर यूनिट वेट कॉस्ट के हिसाब से सॉर्ट अगर करना है तो हमें कोई ना कोई सॉर्टिंग एल्गोरिथम लगाना पड़ेगा। बेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम हमारा हो सकता है क्विक सॉर्ट, और क्विक सॉर्ट का बेस्ट केस जो रहेगा दैट विल टेक द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिग O of n log n, एंड देयरफॉर फाइनली हम कह सकते हैं कि अगर हम फ्रैक्शनल knapsack प्रॉब्लम को अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसका बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी जो रहेगा दैट विल बी बिग O of n log n। So here we have one assignment problem for you. Problem is consider 7 atoms along with their respective weight and values as follows. So here you have given in all total 7 atoms. For all 7 atoms, total weight and total value is given to you. Also, the capacity of knapsack capital W is equals to 15 is given to you. What you have to do? You have to find the solution for fractional knapsack problem by using greedy strategy. So you have to solve this particular problem.
by using the input which is provided in this video. So this was all about what exactly knapsack problem is and how to solve any particular fractional knapsack by using greedy strategy. Thank you.